हाँ गुंजन जो ये नोट के अंदर एडवाइजरी कमेटी की एक हाइपरलिंक आएगी। जैसे ही वो क्लिक करेगा तो हु आर इन द एडवाइजरी कमेटी, डीआर कैन सी, रजिस्ट्रार कैन सी। ओके, तो एडवाइजरी कमेटी कहाँ होगी? ग्रीन फॉर्म के टाइम आ गई होगी हमारे पास। तो उसका एक व्यू देना है। ये एक मैं लिख देता हूँ यहाँ। ओनली व्यू के लिए एडवाइजरी कमेटी डिटेल कैन व्यू। जो लिंक पे क्लिक करेगा तभी व्यू कर सकते हैं। यहाँ लिंक ही लिख देता हूँ। सारे स्टेप में ये लोग ये देख सकते हैं। सबमिट ए नोट टू डीआर फॉर 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नेम्स फॉर द थीसिस। ये यूनिवर्सिटी पीएचडी है तो 2 देगा। नोट का फॉर्मेट हमने देख लिया। ऑन नोट फॉर्म એડવાઇઝરી કમિટી મતલબ ગ્રીન ફોર્મમાં છે. હા બસ એ જ. એ ખાલી ડિસ્પ્લે એમને જોયું હોય ને તો જોઈ શકે કે એડવાઇઝરી કમિટીમાં કોણ કોણ છે. બરાબર. लिंक बराबर. यहाँ भी कहीं पर भी एम पैनल एक्सटर्नल रेफरी के सिवाय कोई रेफरी मैन्युअली वोट नहीं डाल सकता. ओके. अच्छा, हम डीआर वाली प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे ना. तो डीआर यहाँ अपना एक नॉमिनी भी सजेस्ट करेगा और बाकी सजेस्टेड है 3 है तो 3 में से भी. તો ડીઆર જે નોમિની સજેસ્ટ કરે हाँ, ये डीआर ही कर सकता है और किसी के लिए ऑप्शन नहीं आएगा लेकिन डीआर. वो किस में से करेगा? वो 3 और 5 में से करेगा या अलग से करेगा? अलग से करेगा. और इज फ्रॉम आवर टीचर मास्टर. टीचर मास्टर्स में है, उसमें से किसी को भी वो नॉमिनी. मतलब इंटरनल टीचर. हाँ, जो हमारी यूनिवर्सिटी ये इंटरनल होगा. जो डीन पीजी नॉमिनी इज इंटरनल. ओके. ओके, एंड इज फ्रॉम टीचर मास्टर. मैं लिख ही देता हूँ. इट इज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. ही इज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. काउंट्स में टीचर मास्टर लिख ही देता हूँ. बराबर.
अगर टीचर मास्टर में वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके। हाँ, डीआर अप्रूव भी कर सकता है और रिटर्न रिजेक्ट करके रिटर्न भी कर सकता है। अप्रूव द प्रपोजल और रिटर्न इट टू यूनिवर्सिटी। If not approved, then also return to the university with comments. Okay. On not form, registrar can view advisory committee. DR can be also here. Okay. इसमें कोई क्वेरी डीआर वाले स्टेप में गुंजन? ओके। डीआर में से अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ तो वापस यूनिवर्सिटी में आएगा, नेक्स्ट फिर से रजिस्ट्रार के पास। यूनिवर्सिटी लिखा हो या रजिस्ट्रार, बोथ आर सेम, इंटरचेंजेबल। If approved by the DR, university generate external referee appointment order. For Kacha bound thesis evaluation and send it to send it to dean of the college as well as send the copy to DR. वो डीआर को भी इन्फॉर्म करता है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर जाने देता है, और डीन को भी फिजिकल कॉपी जाएगी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, એ થઈ ગયું છે, મેં જોયું અમુક કેસ તમે જે મોકલ્યા ને એમાંથી અમુકનું થઈ ગયું છે, પણ અમુકમાં પ્રોબ્લેમ એવો છે ને સર, ડેટાનો પ્રોબ્લેમ છે। જે અમુકને નથી મળતું ને એની અંદર કેવું થયું છે, એ સર એક પોલિસી આપણી એવી હોય છે ને કે ક્લાયન્ટનું ડિફોલ્ટ ડીપી યસ અને ડિફોલ્ટ બેંક એકાઉન્ટ યસ અને એક્ટિવ એકાઉન્ટ એક જ હોય કે એકથી વધારે હોય? એની ડિફોલ્ટ ડીપી મલ્ટિપલ હોઈ શકે, ડિફોલ્ટ બેંક એકાઉન્ટ મલ્ટિપલ હોઈ શકે, એક જ હોય? હા, એક્ટિવ તો મલ્ટિપલ હોઈ શકે પણ ડિફોલ્ટ ડીપી યસ અને ડિફોલ્ટ ડિફોલ્ટ બેંક એકાઉન્ટ યસ વાળો તો એક જ હોય? હા, તો ઘણા કેસમાં એ બે બે મળે છે। હા, બે બંનેમાં બેંકમાં યસ હોય ને પેલામાં, એટલે સિસ્ટમ ગૂંચવાઈ જાય છે। બે રેકોર્ડ મળે છે ને, એટલે હવે કયો રેકોર્ડ ઉઠાવો બે, તો એ આપણે થોડું જોવું પડશે। એમાંથી ખાલી એ નો રો પોઝિશન આવે છે। હું તમને એક બે એક્ઝામ્પલ મોકલું છું હમણાં મેલમાં। મને બે કેસમાં એવું જોવા મળ્યું અને બંનેમાં નો રો પોઝિશન વાળું આવે। હા હા હા, એટલે જો એવું ના હોય તો એ ડેટા આપણે એક્ટિવ એકાઉન્ટ ને ડિફોલ્ટ ડીપી યસ ને ડિફોલ્ટ બેંક એકાઉન્ટ યસ વાળા એક જ રેકોર્ડ કરવા પડે। અને બીજું એક એવા પણ રેકોર્ડ આવે છે જેનો પાન નંબર સેમ હોય પણ ટ્રેડિંગ આઈડી ખોટો હોય। એટલે પેલા આવે છે ને, પેલા બ્રાન્ચના તમે એક રેકોર્ડ ડિફોલ્ટ ડીપી યસ સાથે ક્રિએટ કરો છો ને સેમ પાન ઉપર, ધારો કે ફિનસ્ટોક લિમિટેડ છે તો એમાં 8000 નંબરનો ક્લાયન્ટ આઈડી હતો, 0008, તો એ આપણે કે એકાઉન્ટ કાઉન્ટ કરવાના કે નહીં કરવાના? એ એકાઉન્ટને લેવાના નહીં ને, એ ક્લાયન્ટ એકાઉન્ટ નથી ને? એમાં ક્લાયન્ટનું નામ નહીં હોતું પણ બ્રોકરનું નામ હોય। રત્નમ ડીપી, રત્નમ ઇન્ફોટેક એવું નામ જોવા મળતું હતું એ એકાઉન્ટ।
હા, તો એ આપણે જ્યારે ઇમ્પોર્ટ કરીએ ને ત્યારે આવા રેકોર્ડ કાઢી નાખવા પડશે. ઓકે, સેમ પાન ઉપર એટલે એને મલ્ટિપલ રેકોર્ડ મળી જાય, અને એના કારણે સિસ્ટમ છે ને મલ્ટિપલ, સિંગલ રો નહીં આવતી ને, એટલે મલ્ટિપલ રો આવે એટલે કઈ રો ઉઠાવી, યુનિક રેકોર્ડ મળવો જોઈએ, એ નથી મળતો. ઓકે, એટલે એનું સોલ્યુશન કરીએ છીએ. મેં કીધું તમારી જોડે ડિસ્કસ કરવાનું કે આમાં કેસમાં શું કરવું, તો આપણો એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ. હા હા, જેનું ટ્રેડિંગ હોય ને ડીપી ના હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, પણ જેનું ખાલી ડીપી હશે ને એનો પ્રોબ્લેમ થાય. તો એમાં શું, આપણે ટ્રેડિંગ આઈડી થી ક્વેરી મારીએ છીએ ને, ટ્રેડિંગ આઈડી પાન નંબર, એટલે એ રેકોર્ડ જ નહીં આવે. નો રો હા એટલે એમાં પ્રોબ્લેમ આ છે સર, કે પાન નંબર એક જ છે, પણ એ પાન ઉપર એક ક્લાયન્ટનું એકાઉન્ટ છે ને પછી પાછું આવું એકાઉન્ટ છે. હા, આવું મેં નાખી દઉં ખાલી ડીપી વાળું કે એની એક જ પાન ઉપર બે ક્લાયન્ટ આઈડી અલગ અલગ છે, પણ બે એકાઉન્ટ છે, એવું થાય? હા, મનીષ જ છે, મનીષ શાહ. એટલે એમાં એક છે ને 008M001 વાળું એકાઉન્ટ છે, અને બીજું છે આગળ 50 ને છેલ્લે 8 વચ્ચે કોઈ આલ્ફાબેટ નહીં. હા, તો એ એપીઆઈડી વાળા એકાઉન્ટ લેવાની જરૂર ખરી આપણે? કારણ કે એમાં પાન સેમ બોલે છે, એટલે ક્વેરીમાં એ હા એટલે આવી જગ્યાએ જ્યાં મલ્ટિપલ રેકોર્ડ મળે ને ત્યાં નો રો પોઝિશન. હા હા, એટલે મલ્ટિપલ રો આપણે હવે એક જ રો જોઈતી હોય, સિંગલ રો, તો જે એ એકાઉન્ટનું ક્લાયન્ટનું ડિટેલ ઉપાડી શકીએ ને. મલ્ટિપલ રો આવે તો કયાનું ઉપાડવું, પ્રશ્ન તેમાં અહીંનું કરી જાય. હું તમને ડિટેલ મોકલું છું આવા 2-3 કેસની મેલમાં. હા, તમે ચેક કરાવો ને એમાં શું ડેટાનું સોલ્યુશન કરવાનું છે આપણે ટૂંકમાં, ઇમ્પોર્ટ પહેલા. બરાબર. હા, રોજ ક્લાયન્ટ માસ્ટર એક્ઝિસ્ટિંગ તો અપલોડ થાય જ છે. ઓકે, એટલે હવે ધારો કે અત્યારે અમે ટેમ્પરરી અહીંયા સુધારી દઈએ, પણ બીજે દિવસે ઇમ્પોર્ટ થાય એટલે પાછી પોઝિશન એની જ થઈ જાય. હા, ટેક એક્સેલમાં જ કરવું પડે. ઓકે, હા, એ તો સોલ્વ થઈ ગયું. હા, ના ના ના. ઓકે, એટલે ડિફોલ્ટ ડીપી યસ ને ડિફોલ્ટ બેંક યસ ને એક્ટિવ એકાઉન્ટ તો એક જ મળવું જોઈએ ને. એ તો આપણો આખી સિસ્ટમ એના ઉપર છે. જો એ ક્રાઇટેરિયા બદલી જાય તો આખી સિસ્ટમ. હા હા, એક તો આર્યો આ જ છે 008M001, એમાં મલ્ટિપલ એક્ટિવ એકાઉન્ટ છે. ડિફોલ્ટ ડીપીએસ વાળા બે એકાઉન્ટ છે. પાન નંબર એ સેમ,
ટ્રેડિંગ આઈડી અલગ એવો એકાઉન્ટ છે, એમાં 3 એકાઉન્ટ છે સાહેબ, 3-4 એકાઉન્ટ છે અને એમાંથી 2 એકાઉન્ટ તો સેમ ટ્રેડિંગ આઈડી સેમ પાનથી એક્ટિવ છે. એક્ટિવ ડિફોલ્ટ ડીપી યસ છે અને ડિફોલ્ટ બેંક પણ યસ છે. એમાં 2 રેકોર્ડ છે એક જ ટ્રેડિંગ આઈડી. આ તમે પર્ટિક્યુલરલી આ જુઓ 008M001 આમાં આવું છે. નહીં, પાન પણ કોમન છે. હા, અને એ પાન પાછું બ્રાન્ચમાં છે એટલે ત્રીજો રેકોર્ડ આવે છે એનો બ્રાન્ચના કારણે. 008M001 ના પોતાના તો બે રેકોર્ડ છે જ એક્ટિવ. હા, એટલે બેમાં ડિફોલ્ટ ડીપી યસ ને ડિફોલ્ટ બેંક યસ છે અને પ્લસ એક બ્રાન્ચનો છે એ જ પાન ઉપર. એટલે આવા કેસમાં ફસાઈ જાય સિસ્ટમ. બરાબર. કાલે સાહેબ છેલ્લે પછી ખબર પડી, આ બહુ રિસર્ચ કર્યું, યાર ક્યાંય એરર આવતી નહીં, કઈ થ્રો નહીં થતું. ઈ કેવાયસી માં સબ બસ એપીઆઈ વાળું ચાલે છે આપણું, સ્ટેક એક્સેલ પુશ વાળું, બાકી બધું ક્લિયર થઈ ગયું અને આજે લગભગ એ પૂરું થઈ જશે. હા, થઈ ગયા. સેજલે કાલ 2 એન્ટ્રી કરી, મને લાગે કાલે ને પરમ દિવસે. ઓનલાઈન એન્ટ્રીમાં લગભગ હવે ઇસ્યુ નથી રહ્યા. એક ઇસ્યુ છે કે આ પેલી ઈ-સાઇન જનરેટ થાય ને, ઈ-સાઇન વાળી પીડીએફ, તો ક્યારેક ક્લાયન્ટને ખબર નથી પડતી, મેલ જાય ને મેલમાં આવી જાય પણ કહો કે થોડી ગૂંચવાય છે સિસ્ટમ, એટલે ડાઉનલોડ થયું કે ના થયું એ કદાચ ખ્યાલ નથી આવતો. તો એની ઉપર કામ ચાલુ જ છે, એ આજ રેક્ટિફાઈ થઈ જશે. ઓકે ઓકે. हेलो, सॉरी, विशाल शाह साहब का फोन था. हेलो. ये तो ख्याल आई हो। तो आपकी मीटिंग हो रही थी? हाँ, नहीं वो तो मैंने सुना, उनको भी थोड़ा सा करते हैं। मैं भी बैठा ही हूँ आज, अभी कश्यप आ ही रहा है ऑनलाइन। हाँ, तो बता दो वो ई केवाईसी का क्या स्टेटस है. तो मैंने कहा कि ऑलमोस्ट खत्म ही है, वो स्टैक एक्सेल पुश का प्रॉब्लम है. ओके. हाँ ते ओके. હવે તો યુનિવર્સિટી અપ્રુવલ પ્રોસેસની અંદર ગુંજન આપણે અહીંયા હતા, એપ્રુવ થઈ જાય તો એપોઇન્ટમેન્ટ ઓર્ડર જનરેટ કરશે, બરાબર, ઇવેલ્યુએશનનો, અને ફિઝિકલી ઇટ વિલ ફ્લો ટુ ડીઆર એન્ડ કોલેજ. ओके. इफ नॉट अप्रूव्ड देन यूनिवर्सिटी रिटर्न्स द प्रपोजल टू डीन. अगर अप्रूव डीआर ने मंजूर नहीं किया तो यूनिवर्सिटी में आएगा. यूनिवर्सिटी अगर नॉट अप्रूव्ड देखती है तो वो डीन को रिटर्न करेगा विथ कमेंट्स. ओके. અને अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल अप्रूवल हो तो किसको भेजना है? तो ये तो फिजिकली ये लोग मोकलશે, पर ડીઆર ને ડીન જોઈ શકે કે આનો અપોઇન્ટમેન્ટ ઓર્ડર જનરેટ થઈ ગયો છે, એક સ્ટેટસ મળવું જોઈએ, બરાબર. અને એપોઇન્ટમેન્ટ ઓર્ડર નું ફોર્મેટ તને બતાવી દઉં. ओके. आज मेंशन कर दिया अपनी लाइन में कि भेज रहा है वो हमारे सिस्टम में नहीं है, बट अपने को है कि दोनों को स्टेटस दिखना चाहिए. हाँ, 1 मिनट में लिख देता हूँ. राइट, यू आर राइट. अपॉइंटमेंट ऑर्डर. physically, બરાબર, and only status of
ओके हाँ 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 इफ नॉट अप्रूव तो एज इट इज प्रपोजल डीन को दिखाएगी कि भी ये प्रपोजल रिजेक्ट हो गई। अपॉइंटमेंट ऑर्डर एक्सटर्नल रेफरी अटैच्ड हियर विथ, हम उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ये रहा एक्सटर्नल रेफरी अपॉइंटमेंट ऑर्डर। नीचे देखा दो एक्सटर्नल रेफरी अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया स्क्रीन पे। बराबर इस तरह का एक लेटर होगा अपॉइंटमेंट ऑर्डर। डिग्री आएगी, स्टूडेंट का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ जो एक्सटर्नल गाइड है उसका नाम आएगा। लेटर प्रिंसिपल को जाएगा, डीन को। ओके जो कॉलेज ने प्रपोजल भेजी थी उसके डीन को ही हम अपॉइंटमेंट ऑर्डर भेजेंगे, और बाकी तो टेक्सुअल इंफॉर्मेशन है। ओके थीसिस का टाइटल अंदर आ जाएगा। ओके तो इसमें कोई क्वेरी? हाँ ये ये एक देख लो, ये 4 वीक्स गुंजन, अगर मास्टर्स है तो 4 वीक्स है, पीएचडी है तो 6 वीक। ओके ये मैं डाल देता हूँ इवैल्यूएशन पीरियड, जो एक्सटर्नल रेफरी को हम इवैल्यूएशन पीरियड है वो। और इसको कॉन्फ़िगरली बना देना, इवैल्यूएशन पीरियड ऑफ दिस इज 4 वीक्स। क्योंकि ये पीरियड कभी भी प्लस माइनस हो तो हमें हार्ड कोड नहीं करना है। और तो इसमें कोई क्वेरी? तो उसके बाद ये वापस प्रपोजल कॉलेज लेवल पे आएगी। अब कॉलेज तो कच्चा डीन सेम या अलग है? है, कॉलेज और डीन सेम है या अलग है? सेम कॉलेज या डीन बोथ आर सेम। ओके जहां पर भी कॉलेज या डीन लिखा है। हाँ तो इफ प्रपोजल इज अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी एंड रिसीव एन अपॉइंटमेंट ऑर्डर, तो उसके बाद फिजिकली थीसिस वो एक्सटर्नल एग्जामिनर को भेजेंगे फॉर इवैल्यूएशन। तो यहाँ वो डेट डालनी है उनको ये फॉर्म में कि भी कौन सी डेट को एक्सटर्नल को थीसिस भेजी और व्हाट इज द
document number. Date of दिन। ओके, थीसिस भेज देंगे वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर के हिसाब से, और यहाँ पर वो प्रोसेस में उसकी डेट और डॉक्यूमेंट्स का लेटर का नंबर वो डाल देंगे। ओके, इफ नॉट अप्रूव रिटर्न टू मेजर गाइड। अगर अप्रूव नहीं हुई है, ऊपर से रिजेक्ट होके आई है, तो वापस वो मेजर गाइड को भेज देंगे। आफ्टर द रीसबमिशन प्रोसेस विल बी स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम स्टेप 1। स्टेप 1 से फिर से प्रोसेस रीसबमिशन की शुरू होगी, सेम प्रोसेस। तो ये कच्चा बाउंड थीसिस फ्लो यहाँ पर कंप्लीट हो गया ना? कंप्लीट हो गया। अब हम एक स्टेप बना देते हैं कि हर स्टेप में 2 ऑप्शन रहेगा, अप्रूव और रिजेक्ट, अप्रूव रिजेक्ट, ठीक है? तो कौन सा स्टेप में कहाँ जाएगा वो हमको मेंशन करना पड़ेगा पहले। गुंजन तो ऐसा कर, सबसे बड़े तरीका है कि इस पूरे फ्लो को स्टडी कर अपने हिसाब से, प्रोग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या क्या है तेरे पास, क्या क्या नहीं है, क्या क्या चाहिए, कहाँ पर क्या क्या गैप है। पेन पेपर लेके बैठ जा। हाँ, एक चीज इसमें देखिए कि जैसे आप 5th पॉइंट पे लाइए सर, ऊपर 5th पॉइंट है ना। हाँ, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए। डीआर से पहले डीआर अप्रूवल करेगा तो यूनिवर्सिटी को मिलेगा, यूनिवर्सिटी अप्रूव करेगा तो डीआर को वापस मिलेगा, ठीक है? फिर इफ नॉट अप्रूवल तो डीन को मिलेगा, ठीक है? तो कॉलेज पे जाएगा। अब कॉलेज को कैसे पता चलेगा कि ये यूनिवर्सिटी थ्रू आया है रिटर्न या फिर मेजर गाइड से आया है? क्योंकि सेकंड नंबर पॉइंट है, फिर कॉलेज है, मतलब एक साइकिल घूमती रहेगी। अप फ्लो और डाउन फ्लो दोनों फ्लो होंगे इसमें। तो यूनिवर्सिटी के कहीं पर भी तेरे को, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा फ्लो है, ये कॉलेज में भी किसी को विजिबल होना चाहिए, हर कच्चा बाउंड प्रोसेस का, कि ये है, यहाँ से स्टेप तक चल रहा है, यहाँ से स्टेप तक चल रहा है, बट आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। जहां पर उसका कंट्रोल है वहां पर उसका इंटरवेंशन करने की ताकत होनी चाहिए, बाकी उनका फ्लो, अदरवाइज उनको नहीं पता चलेगा कि मेरे को कौन से स्टेप से आया है। दिक्कत कहाँ पे है? मेरी दिक्कत ये है कि हम ज्यादा से 2-3 फॉर्म से हम सब फ्लो बनाना चाह रहे हैं, हमें मल्टीपल फॉर्म नहीं बनाने हैं, ठीक है? सबके लिए अलग अलग फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो इंटरनल ये प्रोसेस हो रही है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो उसके लिए जो इनम है ना, मैं उसमें अभी कंफ्यूजन हूँ। नहीं, आप पहले तो ये प्रोसेस फ्लो के स्टेप्स डिफाइन करो, और किस स्टेप्स में अप्रूव होता है तो कहाँ जाता है, रिजेक्ट होता है तो कहाँ आता है, बराबर? ठीक है। सपोज मेजर गाइड ने भेजा, डीन अप्रूव करता है तो रजिस्ट्रार को जाता है, पर डीन रिजेक्ट करता है तो वापस मेजर गाइड को जाएगा। 2 फ्लो हो गए। तो अब डीन मेजर गाइड को ये पता चलना चाहिए कि ये डीन ने वापस भेजा है मुझे। अगर डीन ने अप्रूव किया और रजिस्ट्रार से गया, रजिस्ट्रार में जाए, तो वहां पर भी 2 फ्लो है, या तो डीआर को जाएगा या तो वापस डीन को आएगा। मतलब इसमें जितने स्टेप है उतने इनम बनाने पड़ेंगे, वैसा नहीं है कि डीन, डीआर, फिर हर स्टेप का और एक मेजर गाइड। डिस्क्रिप्शन। इसका 4 इनम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 4 तो इनम में कंफ्यूजन है। विशाल एक पूरा प्रोसेस फ्लो ही का एक कॉन्फ़िगरेबल टेबल ही बना दे दो।
फिर उसको कॉन्फ़िगरेबल टेबल JSON तो ठीक है, हाँ कॉन्फ़िगरेबल टेबल तो ठीक है। इसमें क्या होगा बेसिकली, मेरा जो एंड गोल है, मतलब मेरे को एंड गोल लग रहा है कि जो भी आदमी खोले फर्स्ट स्टेप में, जो भी इंसान है उसको ये पता चलना चाहिए कि आई एम ऑन द फर्स्ट स्टेप, मैं ये करूंगा तो अगला स्टेप ये होगा। अगले स्टेप वाले के पास जाएगा, उसके पता होना चाहिए कि पहला स्टेप पूरा बिना कहीं देखे वो जो फॉर्म खोलेगा उसमें पहली चीज एक छोटा सा टेबल या छोटा सा हॉरिजॉन्टल टेबल आ जाना चाहिए कि 10 स्टेप है, जैसा गुंजन बोल रहा है कि 10 इनम होंगे, 10 स्टेप है, पहला स्टेप पूरा होकर दूसरे में मेरे पास आया है, पहला पूरा हो चुका है, ग्रीन कलर या कुछ भी दिखाओ उसे, या डन दिखा दो। और फिर उसके बाद अगर वहां पे रिजेक्ट होता है तो वापस जाएगा जो भी आपका फ्लो है, ठीक है। थर्ड आएगा, अभी उसको फॉर्म्स ज्यादा लगते हैं तो ज्यादा लगेंगे, पर ये सारा सिंगल फॉर्म से मैनेज करना है कि डेटाबेस। अभी डेटाबेस से आप कह रहे हो कॉन्फ़िगरेबल, अभी इसमें कॉन्फ़िगरेबल क्या होगा, स्टेप्स तो फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होने वाले हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, और इनमें से कोई भी ऑप्शनल भी नहीं है। ना, वो स्टेप तो बदलने वाले नहीं। हाँ, और ऑप्शनल भी कोई नहीं है। अगर इसके अंदर पर टाइम बाउंड जैसा कुछ होता, ठीक है, तो उसको हम ऑप्शनल डाल सकते थे, पर ये ओवरऑल प्रोसेस का टाइम फिक्स है, हर एक स्टेप का टाइम फिक्स नहीं है। नहीं, कहीं पर भी टाइम फिक्स नहीं है। पर हाँ, लास्ट जो इवैल्यूएशन के लिए जाता है तो एक्सटर्नल एग्जामिनर के लिए टाइम फिक्स है कि भाई आपको 4 वीक्स में वो तो वापस एक करना है। जन के लिए दैट कैन बी मैनेज, दैट कैन बी कॉन्फ़िगरेबल। सो मेरा पर्पस है कि आप इसको टेबल के थ्रू मैनेज करो या पर जैसे भी। वो मैंडेटरी नहीं है 4 वीक्स का, वो 6 वीक्स के रिटर्न करे तो भी यूनिवर्सिटी कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। There सो is- मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट, अब आप देखो जरा। हम्म, मैं कुछ ऐसा कह रहा था, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करूँ। अपना मीटिंग शायद अभी कितनी देर का बाकी है? 5 मिनट। 5 मिनट ना, पाँच ठीक मिनट। है, हो जाएगा। हम्म। कुछ कहना चाह रहा था शॉर्ट में। तो गुंजन बिल्कुल पहले शांति से फ्लो डिजाइन करो, या तो बहुत एक्सेल आराम से, में भले 2 दिन उसमें ले माइंड में। लगे। तो मैं ऐसा करता, जैसा स्टेप 1, ये कॉलम 1 हुआ, स्टेप सॉरी, हर फ्लो, हर स्टूडेंट को एक आइडिया, हर आपका जो कच्चा बाउंड थीसिस है उसका आईडी हो जाएगा, कच्चा बाउंड थीसिस आईडी। हेलो, उसका जो आईडी आ गया स्टूडेंट का, एक मिनट, ये रिकॉर्ड हो रहा है कि कौन सा रिकॉर्ड हो रहा है पता नहीं। आप स्टॉप करो वसंत भाई शेयरिंग एक बार। हाँ, आई थिंक फिर जो रिकॉर्ड हो रहा होगा ना, मेरे स्क्रीन पे कौन सा आ रहा है गुंजन अभी? मेरा वाला आ आपका रहा ही आ है? रहा है। ओके, ठीक है। सो कच्चा बाउंड थीसिस आईडी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके जो भी स्टेप्स आप डिफाइन करोगे, स्टेप स्टेप के साथ में डिस्क्रिप्शन ले लो या जो ले लो। उसके बाद अगर आपने टेबल में रखे हुए हैं तो आपकी टेबल में एंट्रीज जिस तरह आप डालते हो कि जाएगी स्टेप 1 कंप्लीटेड, स्टेटस, डेट स्टार्टेड, उतना ही स्टेटस। तो आपको हम हर पॉइंट पे, हर पेज के ऊपर ये पता रहेगा कि कौन सा स्टेप पूरा हो चुका है, कहां पर जाना है, कैसे जाना है। आपको कोई भी चीज ट्रैक करने की जरूरत नहीं है अलग से कि डेटाबेस में जाके चेक करना है, कहीं कुछ चेक करना है। आपकी सारी रिक्वायरमेंट उस स्टेप की पूरी हो जाती है, आपने यहाँ पे एंट्री कर दी एक बार कि स्टेप मेरा पूरा हो गया है। सो आप हाँ, वापस प्रोसेस। नहीं जाओगे कहीं भी चेक करने, आप सीधा यहीं से उठा लोगे कि ये पूरा हो चुका है, तो मैं बाकी सब वैलिडेशन नहीं करने जा रहा हूँ। और फिर जहां भी आपको सिर्फ यूआई पे दिखाना है तो आप यहाँ से पिक करके दिखा सकते हो। उनको यूआई पे पूरा फ्लो ही दिखा दो कि अभी यहाँ से वापस यहाँ गया था, यहाँ गया था, यहाँ से क्योंकि ये वापस आया। विजुअलाइजेशन जो होगा ना, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए जरूरी होगा कि स्टूडेंट का अगर डीन को देखना है, सपोज जिसके पास भी अथॉरिटी हो कि कहाँ अटका हुआ है, तो भाई ये चीज है, ये इस तारीख को गई थी स्टेप में, अभी अटकी हुई है। इसका कोई भी विजन स्टूडेंट को नहीं देना है, ये हाँ, दिस इज स्टूडेंट को ऑल नहीं, मतलब इंटरनल। हमारी इसमें इंटरनल चार और पार्टीज हैं, हमारी इसमें चार पार्टीज हैं, मेजर गाइड, डीन, रजिस्ट्रार और जो यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं शायद एक और पार्टी, 4 पार्टीज है अपनी, डीआर। डीआर। तो चारों के पास ये रहेगा, और आई आई बिलीव कि जो डीआर है उसको तो मिनिमम ये दिखना चाहिए, बाकी अगर किसी को नहीं दिखे तो। हाँ, मेजर गाइड को डीआर तो इज शायद जरूरत नहीं है, बट बाकी 3 को दिखना चाहिए। नहीं, सबको मेजर गाइड को भी दिखना चाहिए भी, उसकी दिखना चाहिए, स्टूडेंट है उसको तो अपना अपना दिखेगा, अपने अपने स्टूडेंट का दिखेगा। अपना अपना स्टूडेंट का वो दिखना चाहिए भी, किस स्टूडेंट का कहाँ पर अटका है। देख लो, सोच लो पर इस लाइन के ऊपर भी। इमीडिएट डिसीजन पे मत पहुंचो, अन्य इमीडिएट डिजाइन, मतलब पहले इमीडिएट पहले डिजाइन डिसीजन पे मत पहुंचो। पहले एक बार पेपर पेन लेके बैठ जाओ और पूरा स्टडी कर लो, फॉर्मेट स्टडी कर लो, एक फिर देखो कि कैसे पॉसिबल है। या तो प्रोसेस फ्लो का एक टेबल बना लो और उसमें प्रोसेस सारी रिकॉर्ड होता जाए स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप का इनम हो वहां पर कि भी ये स्टेप से प्लस हुआ, ये स्टेप से माइनस हुआ।
हाँ वो भी बेटर है ना, वही वही चीज है इसके अंदर कि आपने अभी कच्चा बाउंड प्रोसेस है, एक आईडी आ गया एक प्रोसेस का, तो उसके अंदर हमने पांचों से स्टेप और सेम प्रोसेस फिर पक्का बाउंड में भी आएगी। तो तो पांचों पांचों प्रोसेस को हमने किल किया तो चौथे पे आ गए, चौथे को किल किया तो दूसरे पे आ गए, तो उसको कुछ स्टेटस दे दो कि अभी तक 3 तक ही वैलिड है, अब चौथा फिर से हो रहा है। और सेम वे में ऐसा भी है ना कि पूरा का पूरा रिजेक्ट, तो पूरा का पूरा ट्री रिजेक्ट कर दो। जब भी सबमिशन और प्रोसेस फ्लो का टेबल हो उसमें रिकॉर्ड चला जाए बस, और कौन से स्टेप से ये रिकॉर्ड आया है और कौन से स्टेप को गया है और मतलब डेट वही मेन तो है कि जो इनम बनाना है हाँ, वो प्रॉपर सेट हो जाएगा तो एक ही फॉर्म से सब और manage हो जाएगा। इनम की हायरार्की, कौन हायर है कौन लोअर है। हाँ तो बस तो ये 2 स्टेप कर दो। एक इनम का एक टेबल बना लो, एक प्रोसेस फ्लो का बाकी तो टेबल कोई बना लो। इनपुट या इंसर्ट वैसा कुछ है ही नहीं ज्यादा। हाँ नहीं, और खास इस बात को माइंड में रखना कि अपने को ये ना यूआई पे दिखाना है सब, उसको ऑप्शनल मत गिनना, उसको मैंडेटरी गिन लेना कि वो हमको दिखाना है सबको फ्लो, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन्स कम होंगे लोगों को कि कौन सी चीज कहाँ चल रही है, हम रादर देन, और हमारे को क्या रिपोर्ट पे नहीं तो देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। फिर रीसबमिशन प्रोसेस भी सेम तरीके से फिर स्क्रैच 0 से शुरू होगी। अगर पूरे लेवल पे रिजेक्ट होके आता है मेजर गाइड, तो मेजर गाइड फिर से वो उसका रीसबमिट करेगा, बराबर। तो स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1 मेजर गाइड फिर से कितनी सबमिट बार करेगा। रिजेक्ट हो सकता है वो बताओ, हाँ हाँ, रिजेक्ट कितनी बार हो सकता है? 1-2 बार हो सकता है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। नहीं है तो ठीक है। वो नहीं तो कमेंट्स दे कमेंट्स के हिसाब से उसको करेक्ट करना है, वो क्वेरी रिजोल्व कर दे मेजर गाइड। ओके, मेजर गाइड और इज एंड पॉइंट और dr इज अरे मेजर गाइड इज अ स्टार्ट पॉइंट एंड dr इज एंड पॉइंट। ठीक है गुंजन, इसके ऊपर थोड़ा सा ठीक है तो थॉट मैं दो। इसमें पूरा देख लेता हूँ फ्लो कैसे पहले होता है। आप पूरा टेबल स्ट्रक्चर्स एक्सेल में डिजाइन करो, किस तरह आप से फ्लो आप इसे एग्जांपल है। इम्प्लीमेंट करने के ऊपर मत जाओ अभी, अभी आप इसका हाँ सिर्फ हाँ, फ्लो समझ लो, ठीक उसके है बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचो। फिर ओके। एक हम मीटिंग करते हैं और हाँ, ये फ्लो सेम फ्लो फिर पक्का बाउंड में आएगा, आप ये भी ध्यान रखना। और समझो ये उसमें भी मतलब एक का हो गया तो दूसरा का हो ही जाएगा।